Good morning, student. So in video 1 means the previous video we already discussed about the congruence of triangle. If 6 parts of one triangle are congruent to the 6 parts of the another triangle, then two triangles are said to be congruent. After that we will take the criteria, means minimum 3 parts will take the congruent, then and only then we can say that the two triangles are said to be congruent. So first criteria we already completed, that is SAS criteria, means two sides and included angle. Now we will take the second criteria, the criteria number 2, that is ASA criteria. ASA criteria, ASA का मतलब हो गया angle side angle criteria, angle side angle. For example, means we draw the diagram. So by using the diagram, it is clear to all of you, means when we consider the ASA test, this is of your triangle ABC and this is the triangle PQR. Everyone should write this information in the notebook. Okay, if angle A is congruent to angle P, AB is congruent to PQ, and angle B is congruent to angle Q. Here I will take this mark. So this mark is considered as a identical marks. So here the identical marks for angle A and angle P, it means that angle A is congruent to angle P. Secondly, AB को जो मार्क है वही मार्क PQ को भी है, और जो मार्क B को है वही मार्क एंगल Q को भी है. तो यहाँ पे टेस्ट बनता है, मींस कैसे कंसीडर करेंगे, चेक करो. एंगल दिख रहा है, साइड दिख रही है और एंगल दिख रहा है, और ये जो साइड है, दिस साइड इज कॉल्ड द इंक्लूडेड साइड. दिस कॉल्ड एज अ इंक्लूडेड साइड, मींस फॉर अ गिवन करेस्पॉन्डेंस ABC is corresponding with one-to-one correspondence with the PQR. This is the sign I already explained. This is the sign for the one-to-one correspondence. Okay. Here angle A is congruent to angle P. Got it? Means यहाँ पे हमें एंगल A लिखना है. आप एंगल BAC भी लिख सकते हो या फिर एंगल CAB भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी एंगल A. ओके, एक वर्टेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, और वी कैन राइट एज एंगल BAC. BAC भी लिख सकते हैं, CAB भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल A भी लिख सकते हैं, because at point A only one angle is present, so there is no confusion. Either you will write angle A or angle BAC or angle CAB. क्लियर हो गया? मींस अभी यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे एंगल A लिखना है कि एंगल BAC लिखना है, क्योंकि एंगल A के पास एक ही एंगल बना हुआ है. सो नेचुरली वी विल कंसीडर आइदर एंगल A और एंगल BAC. सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एंगल साइड एंगल, सो नेचुरली वी विल गो इन दैट वे. After that, segment AB is congruent to segment PQ. Segment AB is congruent to segment PQ. एंगल हो गया, साइड हो गया. अब लिखेंगे एंगल B is congruent to एंगल Q. मींस दो एंगल के बीच वाला साइड, दो एंगल के बीच वाला साइड, मींस यहाँ पे एंगल साइड एंगल. ट्रायंगल को हम लोग जो 6 पार्ट्स है वो 6 पार्ट्स कैसे कंसीडर करेंगे, चेक करो. एंगल के बाद साइड के बाद एंगल के बाद साइड के बाद और एंगल के बाद साइड और साइड के बाद एंगल. मींस यहाँ पे अल्टरनेटली एंगल साइड इन दिस वे. सो वी कंसीडर फ्रॉम द वन साइड, यहां से कंसीडर करेंगे या फिर यहां से भी कंसीडर करेंगे, तो आपको मिलेगा एंगल साइड एंगल. मींस यहाँ पे दो एंगल ने बनाया हुआ साइड, मींस कॉमन साइड बोलेंगे उसको, दो एंगल ने बना हुआ. So what is the definition of this test or a criteria for a given one-to-one correspondence between the vertices of two triangle if two angles and included side. मैंने ASA में included angle बोला था, यहाँ पे SAS में included angle बोला था.
यहां पे ASA में मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्लूडेड साइड. If two angles and included side of one triangle are congruent to the corresponding angle and included side of the another triangle, then these two triangles are said to be congruent. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA criteria, or we can consider as a test. Okay? So by using this one means angle side angle. तो यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स चेक करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है which criteria we use for congruent of the triangle. Now next criteria is AAS criteria, means angle side. इसके पहला वाला क्राइटेरिया क्या था, एंगल साइड एंगल. सीरियली जाते हैं तो एंगल साइड एंगल मींस दो एंगल और इंक्लूडेड साइड. अब यहां पे साइड इंक्लूडेड नहीं है, मींस साइड एकदम अलग है और दो एंगल एकदम अलग है. जैसे दिस इज द डायग्राम फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. डायग्राम शुड बी कॉन्ग्रुएंट, दिखना चाहिए कॉन्ग्रुएंट आपको डायग्राम ABC and this is of your PQR. No need to prove, simple you have to write here. Angle A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, and either BC is congruent to QR, या फिर हम ले सकते हैं यहां पे AC is congruent to PR. या तो BC congruent to QR लो या फिर AC congruent to PR लो. तो यहां पे देखो, चेक करो, एंगल दिख रहा है एंगल, क्योंकि आइडेंटिकल मार्क्स है तो नेचुरली कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे ट्रायंगल से. एंगल दिख रहा है, साइड दिख रहा है क्या, नहीं. मींस यहां पे हम लोग एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड ऐसा कंसीडर करते हैं. ठीक है, चलो यहां से शुरू करते हैं. एंगल है, साइड नहीं है, एंगल है, साइड है. मींस यहां पे टेस्ट कौन सा बन गया, AAS. ध्यान में आ गया, टेस्ट कैसा बन गया, AAS. मींस the side is not included, means here also the definition is same. For a given correspondence between the vertices of the two triangle, if two angles and one side बोला है मैंने, included side नहीं बोला. included side बोलेंगे तो बन जाएगा ASA. बीस वन साइड कंसीडर करेंगे, इंक्लूडेड वर्ड को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो यहां पे बन जाएगा एंगल साइड. सो हियर एंगल A is congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q, and AB नहीं क्या, BC is congruent to QR. Either we can consider BC is congruent to QR भी ले सकते हैं या फिर AC is congruent to PR भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटी है यहां पे. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by angle side test. तो क्या डेफिनेशन लिखा हमने, for a given correspondence between the vertices of the two triangle, if two angle and one side of one triangle are congruent to the two sides and two angles and one side of the another triangle, then these two triangles are congruent by angle side test. Once again, I will repeat the definition because you have to write it in your notebook. For a given correspondence between the vertices of two triangle, between one-to-one correspondence between the vertices of the two triangle, if two angles and one side of one triangle are congruent to the two angle and one side of the another triangle, then the two triangles are said to be congruent by angle side test. Now first question we already completed in the previous video. So here we start the question number 2. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC, and angle DAB चेक करना है आपको. DAB यानी ये बड़ा वाला एंगल है,
दिस इज द ग्रेटर एंगल, ये वाला एंगल मींस इस एंगल में दो एंगल ए के पास में तीन एंगल है टोटल, DAB, DAC एंड BAC, ये तीन एंगल है टोटल। तो उसमें आपको वो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल हमने कंसीडर किया है। ओके, इज कांग्रुएंट टू इज इक्वल्स टू एंगल CBA मींस दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC. So first of all we draw the separate triangle from this figure. We draw these two separate triangle ABD देखेंगे हम लोग। तो पहले मैं ABD निकाल रहा हूं, देखो छोटा सा निकालूंगा। Here ये आ गया ABD, दिखाई दे रहा है आप सबको? यहाँ पे A दिख रहा है, यहाँ पे B और यहाँ पे D, ये एंगल और ये साइड। Got it? आफ्टर दैट दूसरा है यहाँ पे BAC इस तरह से होगा, ये है, ये आ गया आपका BAC, यहाँ पे A दिख रहा है, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो ये एंगल है और ये साइड है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे दो पार्ट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास, AD प्रेजेंट है और एंगल A प्रेजेंट है। अब बचा मेरे का एक ही पार्ट। अब एक पार्ट में ये एंगल ले नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट गिवन। So which we consider? Can we consider AB? Because AB is only one side in both the triangle, therefore we will consider AB. तो चेक करो यहाँ पे, देखो चेक करो, दिख रहा है यहाँ पे, साइड वाइज जाएंगे, सीरियली जाएंगे, साइड एंगल साइड, दिखाई दिया? तो कौन सा टेस्ट लग गया यहाँ पे? साइड एंगल साइड। बस अभी हमको लिखना है उसको प्रॉपर वे से। कैसे लिखेंगे चेक करो। स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल से, क्योंकि जो ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल विच वन? ABD 1 to 1 लेना है एंड ट्रायंगल BAC। देखो मैं यहाँ पे 1 to 1 स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है और उसी से जाना है। क्यों? देखो एंगल A इज कांग्रुएंट टू एंगल B, इसलिए A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन A के साथ, B is related with the A and D is related with the C. D is related with the C. So 1 to 1 is most important for other proof. ये दूसरे जो प्रूफ रहेंगे उसके लिए 1 to 1 बहुत जरूरी है। Okay? So in triangle ABD and triangle BAC, first we consider the side. Side AD is congruent to side which one? BC. It is given. ये given information है। साइड के बाद लेना पड़ेगा आपको एंगल। सो एंगल ए नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ए में तीन एंगल दिख रहे हैं, तो एंगल ए वी आर नॉट कंसीडरिंग डायरेक्टली। व्हाट वी कंसीडर? एंगल DAB, ये लेना पड़ेगा पर्टिकुलर एंगल। वी कंसीडर द पर्टिकुलर एंगल इज कांग्रुएंट टू एंगल CBA बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन। दिस रीजन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजन देना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने यहां पे रीजन लिखे हैं। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज साइड। साइड मींस AB इज कांग्रुएंट टू 1 to 1 से क्या होगा? BA, इट इज कॉमन साइड। ये हो गया रीजन। ओके, तो पहले साइड लिया, उसके बाद एंगल लिया, उसके बाद साइड लिया। Therefore we can consider that triangle ABD is congruent to triangle BAC by SAS test। कल भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ किया था, उसमें भी इसी तरह से स्टेप्स फॉलो की थी। सो यू विल फॉलो द सेम टाइप ऑफ द टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो किए, 20 यहां तक पहुंच गए। अब मुझे बताइए, यदि एक ट्रायंगल के 6 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे कॉन्वर्सली क्या बोलेंगे? इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द 6 पार्ट्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द 6 पार्ट्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल। तो यहां पे 3 पार्ट्स लेके हमने ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट शो कर लिए। अब यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे उसके। Therefore, we will write as BD is congruent to, क्या बोलेंगे? BD is congruent to what? AC. This is corresponding parts of congruent triangle. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, CPCT. This is the corresponding parts, क्योंकि ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे रहेंगे?
कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो BD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, CPCT, ये हो गया आपका सेकंड प्रूफ। और दूसरा करेंगे एंगल ABD, ABD यानी ये वाला एंगल इसके साथ एंगल A के साथ एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। मींस ये डायग्राम में यदि देखा जाए तो क्या बोलेंगे, BD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये पहला हो गया। और दूसरा एंगल ABD मींस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। दिस इज आल्सो CPCT। तो यहां पे CPCT भी लिख सकते हैं या फिर CACT और CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। इक्वल ये वर्ड क्या शो कर रहा है, दोनों परपेंडिकुलर कैसे इक्वल, मींस यहां पे आइडेंटिकल मार्क्स दे दिया तो समझ में आता है कि कॉन्ग्रुएंट है। परपेंडिकुलर है मींस 90 डिग्री का एंगल बनाया उन्होंने। टू अ लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाइन सेगमेंट, ओके। शो दैट CD बाइसेक्ट AC। अब CD यानी ये वाला CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। कहां पे कर रहा है, O पे। तो बाइसेक्ट कर रहा है मींस क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स दिखाने हैं। मींस वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है मुझे, CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस उसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट OB इज इक्वल्स टू OA। अब OB और OA इक्वल तभी रहेंगे जब ये दोनों ट्रायंगल कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट लाने के लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, मगर दोनों ट्रायंगल में दो ही पार्ट दिख रहे हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है और जो आइडेंटिकल मार्क से दिखा है। ओके, मींस एक साइड दिख रहा है, दूसरा एंगल दिख रहा है, बराबर। अब हमको एक और पार्ट चाहिए क्योंकि दो पार्ट से कॉन्ग्रुएंट शो नहीं होता। सो वी वांट वन मोर पार्ट। अब वन मोर पार्ट में ये वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि दिया नहीं है, ये वाला साइड नहीं ले सकते क्योंकि प्रूफ करना है, ये वाला साइड नहीं ले सकते क्योंकि दिया नहीं है। सो व्हिच वी कंसीडर, कैन वी कंसीडर दिस टू एंगल, कैन वी कंसीडर दिस टू एंगल, यस, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर प्रूफ में स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल, बिकॉज वी वांट टू शो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, देखो CBO, CBO एंड सेकेंड ट्रायंगल, C का रिलेशन D के साथ, तो ट्रायंगल D, B का रिलेशन A के साथ, A, और O का रिलेशन O के साथ। सो इन ट्रायंगल CBO एंड ट्रायंगल DAO, पहला लेंगे सेगमेंट CB congruence to segment DA because it is given, got it? After that एंगल B, अब एक ही एंगल है तो ले सकते हैं हम लोग, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल A। या तो हम यहां पे each of 90 लिखेंगे, 90 डिग्री ये लिखेंगे, या फिर हम यहां पे गिवन भी लिख सकते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर वर्ड इज गिवन। ओके, सो आइदर यू कैन राइट each of 90 डिग्री और यू विल राइट हियर गिवन, सिंपल। आफ्टर दैट एंगल, अब यहां पे O नहीं बोल सकते क्योंकि O के पास में दो एंगल है डिफरेंट, तो यहां पे लिखेंगे COB इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल DOA एंड दे आर द वर्टिकली अपोजिट angles, therefore triangle CBO is congruent to triangle DAO by which test, check करो, side angle angle, क्योंकि साइड के बाद एंगल है, एंगल के बाद साइड है, मगर साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कौन सा लिया मैंने, साइड एंगल एंगल। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं जो हमने यूज किया है, एंगल एंगल साइड टेस्ट, या तो हम इसको SAA भी बोल सकते हैं या फिर AAS। So by using AAS, these two triangles are congruent, and as these two triangles are congruent, then corresponding parts are congruent. तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, therefore BO is congruent to AO, और जब BO और AO जब इक्वल होगा, जब ये दो साइड इक्वल होंगे, इसका मतलब O is the midpoint of AB and O is the midpoint of AB. It means that CD
बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट किया, किसको बाइसेक्ट किया, किसने बाइसेक्ट किया, ये AB को, किसको बाइसेक्ट किया, AB को, ओके। और यहां पे लिखेंगे CP CD, गॉट इट, अंडरस्टूड। सो CD बाइसेक्ट AB।